زیرو ٹی وی ٹیٹ دیکھنے والے سبھی ناظرین کو مرزا شرافت حسین کا سلام. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیکنڈ اننگس. آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں غلام رسول شال صاحب، جو کہ ایک اکیڈمیشین رہے ہیں. محکمہ تعلیم کے ساتھ ان کا ایک وابستگی رہی ہے، اور ساتھ ہی میں آغا اشرف علی صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے، عمدہ کام کیا ہے اپنی فرسٹ اننگس میں، اور آج کل اپنی سیکنڈ اننگس میں بھی یہ کافی اچھی کاموں میں مصروف ہے. اور جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے اپنی فرسٹ اننگس میں کیا کیا کام کیا ہے اور اس وقت بھی کیا کام کر رہے ہیں. پورے اس پروگرام میں آپ تک اس حوالے سے جانکاری پہنچائیں گے. شال صاحب، آپ کا ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم ہے. آپ کے یہاں آنے کا میں استقبال کرتا ہوں. شال صاحب، آپ درس و تدریس کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. آغا اشرف علی صاحب کے ساتھ بھی آپ نے بہت کچھ کام کیا ہے. سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ جو فرسٹ اننگس آپ کی رہی ہے، کیونکہ ہسٹری پر بھی آپ کا ایک بڑا گراسپ ہے، کشمیر کی جو ہسٹری ہے، اور کافی انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی آپ نے بہت کچھ کام کیا ہے. سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ فرسٹ اننگس میں آپ کیا کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، جو کچھ اچھے واقعات آپ کے فرسٹ اننگس میں گزر چکے ہیں. میں وہ اس بارے میں بات آپ سے کر رہا ہوں جو کچھ ہم سے کھویا جاتا ہے، بالکل، جس کی شناخت ختم ہوتی ہے. جی، میں اپنی ماتر بھومی سے شروع کروں گا جہاں میں پیدا ہوا. بالکل. ہف چنار. جی. ہف چنار ایک بڑے علاقے کا نام ہے جو شروع ہوتا ہے تھانے شیرگڑھی سے لے کر راج باغ کانوینٹ تک. یہاں سے رام باغ پل سے شروع ہوتا ہے کہاں تک؟ امبر سنگھ کالج کے سرے تک. بالکل. اچھا، میرے ہوتے ہوئے جن کا میں چشم دیدہ گواہ ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک چناروں کی قطار تھی جہاں اقبال کمپلیکس ہے، جی، وہاں سے شروع ہوتا تھا کہاں تک؟ تلسی باغ سے جاتے جاتے رام باغ کے بنڈ تک. جی، جی. اس میں کتنے 1200 چنار تھے، میں یہ شمار نہیں کر، لیکن ہر ایک تھوڑی تھوڑی ڈفرینس چنار لگے تھے، تھوڑی سی ڈفرینس. یہ فاضل خان گورنر تھا، مغل گورنر تھا، جس کے وقت میں موئی مقدس آیا ہے. یہ 1700 ہے جس نے ہف چنار کی بنیاد ڈالی ہے. آپ اس پر اگر یقین نہیں کرتے، یہ تاریخ ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، مینشن ہے. یہ دیکھیے، جی، جی. ہسٹری بھی دکھائے اور آپ نام کر لیجیے. اور یہ ہسٹری واقعات کشمیر. جی. خواجہ محمد اعظم ددمری کی لیٹ لکھی ہوئی ہے، اس پر لکھا ہے اور پوری تفصیل دی ہے. اب یہ میرے ہوتے ہیں چنار، اور اس کے بیچ میں سے جہاں سے غنی خان سے لے کر تاب سیدھے لکیر لیجیے آپ، وزیر باغ کے روڈ سے لے کر امبر سنگھ کالج کے سیدھے میں ایک چنار لگے تھے. شال صاحب، آج تو وہاں پہ کوئی چنار نہیں دکھ رہا ہے. اسی مجھے پوچھوں گا ان کو کیا ہوا، کتنی بے دردی ہوئی. جی. یہاں پر آپ نے پہلے یہ دیکھ لیجیے. میں اپنے ناظرین کو بھی دکھانا چاہوں گا. اور جی شال صاحب، بیچ میں سے اس جو بیچ میں فیصلہ تھا، اس میں چار چنار ایسی چنار گاہیں کہیں تھی. 1947 تک یہ چنار گاہیں موجود تھی. اگر سرائے بالا میں آپ وہاں کے بزرگوں سے پوچھ سکتے ہیں، ہف چنار میں، وزیر باغ میں یا گونیخ میں کوئی بیمار پڑتا، 4 پیپر لے کر ان کو وہاں رکھتے تھے، ان کو شام کو گھر لے جاتے تھے. اسی آب ہوا سے اسی سے وہ بھی. اب وہ چنار کہاں گئے؟ کیا واقعات پیش آئے کہ اس کے بارے میں اب نظر نہیں اتنا ماتم کیا ان کے بارے میں، کیسے بے درد سے کاٹے گئے، آپ کا اسٹیڈیم تیار ہو گیا. بالکل. اقبال پارک آبادی میدان تھا، اس کا نام ہے. وہاں جموں میں پریڈ گراؤنڈ تھا، دونوں مقابل میں چلتے. رنبیر سنگھ کے وقت میں تعمیر ہوا ہے. اس میں گائیں پلتی تھی، دودھ ملتا تھا، لوگ دودھ دیتے تھے. اپنے شام کو جو وزیر باغ کے لوگ تھے، سرائے بالا کے لوگ تھے، گونی خان کے لوگ تھے، ہف چنار کے لوگ تھے، وہیں پر شام گزارتے، پوری ہوا خوری کرتے تھے. لوگ تندرست تھے، صحت مند تھے. اب دوسرا میں آپ کے سامنے یہ بات کہی نہیں چاہیے، لیکن کوئی لال دد نہ تھا. خدا کی پرتپوشی سیدھی تھی، کیونکہ ہماری مائیں ہماری میں بہت محنت کرتی تھی.
बहुत मेहनत करती थी, पानी नलकों से लाना, कपड़े धोना, शाली कूटना, ये सब उनकी था। उससे उनको क्या मिलता था, उनकी सेहत ठीक रहती थी। ताज़ा हवा से उनकी सेहत ठीक रहती थी। अब हम, मेरी एक माँ थी, अब देखिए, हम घर में बच्चे भी थे, उनको भी पालती थी, पानी भी लाती थी, शाली भी कूटती थी, सब कुछ करती थी। ये भी खो गया हमसे। चुट्ठू घर में थे, मोसले घर में थे, आज कहीं ना मोसलों का नाम न चुट्ठू का नाम, वो भी प्रैक्टिस होती है, उसके बदले हम जॉगिंग करते, वो करते, ये करते, लेकिन काम भी निकलता था, सेहत भी बनती थी, वो भी खो गया हमसे। अच्छा, यही हपचनार, अब यही से यहाँ से जब मगुर रोड जाता था, पहली मंजिल हपचनार था जी, सराय बाला जो नाम था। इससे आगे हम क्या जाएंगे तो पहुंचेंगे हम खामपुर, दूसरी सराय थी मगुर रोड की। अब आगे जाएंगे दिब्जन, फिर आगे जाएंगे इलियाबाद, फिर आगे जाएंगे पीर की गली, फिर पोशियाना, फिर बहराम गुलू, फिर आगे जाएंगे थना मंडी, फिर यहाँ से जाए राजौरी की तरफ जाएंगे और आते हैं तो लाहौर और नूरी छम। ये कहाँ गए, ये चीजें हो गए हैं हमसे। और अगर आप किसी को पूछूंगा क्या बात है, यही मैं कहूँगा। दूसरी बात मैं कहूँ, यहाँ से लेकर बरशा पुल से लेकर सुलेपान कॉम्प्लेक्स तक, इसमें आता है कोठी बाग भी, इसमें आता है समंदर बाग भी। आप जानते हैं समंदर बाग क्या होता है, पता है समंदर बाग का कुछ? छोड़ दीजिए आप इसको, फिर आग में इसी में आएगा। समंदर बाग भी, रेड क्रॉस भी, और इसी में आता है अमीरा कर्नल पुल से लेकर सुलेमान कॉम्प्लेक्स तक। इसका नाम था तकिया माया स्वामी। अच्छा, तकिया माया स्वामी। हाँ, मैं अगर किसी को पूछना कुछ हो तो मैं इसका जवाब देता हूँ जी। इसी माया स्वामी का बीड़ा हुआ नाम है मायसूम। अच्छा, बिल्कुल, अभी जो इसको हम मायसूमा के नाम से जानते हैं। मायसूमा का, अगर आपको कहना था माया स्वामी, आप बोल सकेंगे कि नहीं बोल सके, तकिया माया स्वामी। इसी में ये बहुत बड़ा मैदान था, इसी में पोलो ग्राउंड भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। इसी में आ गया कोठी बाग भी, इसी में आ गया हरी सिंह बाग नलवा, जिसको आप इंपोरियम कहते हैं, बिल्कुल, वो भी इसी में आ गया। इसी में आ गया शेख बाग। शेख बाग किसको कहते हैं? जो बंड की तरफ हमारा शेख बाग कहते हैं, जिसमें कोर्ट है और जिसमें ये है कोर्ट है, जिसमें और मिशन स्कूल है, बिल्कुल, मेलन जिसमें है। शेख मुहिउद्दीन था सिखों का गवर्नर यहाँ पर 1846 में। उसी का पैलेस था ये शेख बाग, जिसका नाम शेख बाग है। हम क्या कहते हैं, शेख बाग क्या है तो क्या है, बिल्कुल, इसकी भी अपनी तारीख है। कहाँ से जी जी। ये जो यहाँ पर कोर्ट है आपका, वहां पर समाधि थी, उसको काउज महला कहते हैं। काउज महला है, काउजी कहते हैं उसको जो मुर्दे को जलाते हैं, डेड बॉडी को जलाते हैं। महाराजा रणबीर सिंह वो वहां से शिफ्ट किया समाधि को, वो ले गए करण नगर जी। ये कहाँ से शिफ्ट किया? कोट जहाँ पर आज जहाँ पर सदर, हाँ, पुराना कोट, ये कोट नहीं, बिल्कुल पुराना कोट, उसको काउज बाग कहते हैं। वो लोग मुझे बराबर भी कहेंगे, अगर उसने ये हमारे पुराने कैसे ऑब्जेक्शन होता है। फिर तो समाधि को वहां से समाधि उठा ली, कोट बनाया इसलिए कि कोई झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा, क्या दिलचस्प बात है। और समाधि कहाँ पहुंचाई? करण नगर में। दो कॉलोनियां पहले की है यहाँ, एक है वजीर बाग, वजीर पुनू के नाम, वो प्राइम मिनिस्टर था यहाँ पर रणवीर सिंह का, उसके नाम पर बना हुआ था वजीर बाग। अच्छा, फिर करण नगर ऐसा बना, ये बनाया है बाद में बन गया। इसका ये असली था ये देवान बाग, देवान मोती राम का उसका था, देवान बाग कहते हैं। फिर बाद में करण नगर बन गया। अच्छा, चलते हम यहाँ की तरफ। ये जो मैं कहता हूँ तकिया माया स्वामी, इसमें मायसूम तो अनाज तकिया माया स्वामी, इसमें आ गया। ये बहुत बड़ा है गांव का दल, एक जगह जहाँ हेड ऑफिस है बैंकों का जी। किस जगह है वो बैंक का हेड ऑफिस? कहाँ है? कॉर्पोरेट जम्मू कश्मीर बैंक का कॉर्पोरेट ऑफिस, रेडियो कश्मीर के बिल्कुल आगे।
शाबाश, रेडियो कश्मीर के आगे उसको कहते हैं, जो पुल है गुरदब कदल। अच्छा, एक तो गुरदब कदल है, दूसरा गाँव कदल है। यहाँ मवेशियां पालते थे। अच्छा, वो वहाँ पानी पीते थे, जिसको गुरदब कदल कहा है। अच्छा, और जो यहाँ कहते हैं गाँव कदल, यहाँ गाय पानी पीती थी। हाँ, इतना ये गाय का ये वसी मैदान था। इसमें तूत के दरख्त बहुत लगे हुए थे, जश्न लगता था इसमें। आबादी वनकस ब्रोट ना ये नंबल, बिल्कुल ये नंबल, ये बिल्कुल था, ये पानी का जखीरा था ये, और इतने दरख्त थे और चिनार लगे हुए थे इसमें। कम तादाद सुकड़ गया। फिर महाराजा रणबीर सिंह ने बनाया कोठी बाग, जिसमें कोठियां आ गई, अंग्रेज यहाँ आने लगे। फिर उनके लिए ये बन गया ये। और हरी सिंह ने वहां से पोलो ग्राउंड बना दिया अपने घोड़ों पर खेलने के लिए, देखते थे था ये, लेकिन ओपन एरिया था। यहाँ पर आज के मौसम में शहर के लोग थे, ये हिस्ट्री में है, अभी मैं कहता हूँ इसमें मेंशन है, ये तूत खाने के लिए आया करते थे। इस पर एक फिरकदारा एक बलवा भी एक दफा हुआ है, उसमें उस वक्त यहाँ का गार्ड था जफर खान। अच्छा, जफर खान उसके टाइम पर हुआ है ये। फिर उसको वापस बुलाया गया है शाहजहां के टाइम में, फिर वो फिर दोबारा उसको लाया, हलफ करवाया। ये यहाँ की इसकी हिस्ट्री यहाँ पर आप रखते। आप देखिए सराय बाला जी, यहाँ से मैंने कहा ये सराय बाला है, इसके आगे है खानपुर सराय, वहां पर बड़ी है सराय बिल्डिंग है। अब जो वहां से लोग आते थे, यहाँ से पहाड़ी रास्ता था, कठिन था, इसमें टांगे भी टूटी होती थी, इसमें बीमार भी होते थे। अब यहाँ पर सराय बाला में हर एक तबका रहता था। यहाँ पर पीर भी रहते हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है, मुहिउद्दीन मिस्कीन, तारीख कबीर लिखी है उसने, जो दसगिर साहब के पास रहते थे, वो भी राइटर था। और यहाँ पर दुर्ग अकबर भी रहते, जो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते दुर्ग को क्या कहते हैं हम, जो हमारी ब्लड वर्म जैसी वो, हाँ खून चूसने वाली वो कीड़े, उसका नाम था कुछ, मैं भूल गया हूँ, याद नहीं, मैं करेक्ट नाम नहीं बोल सकूंगा इसमें। वो भी थे कि इसकी हड्डी मत टूटी थी, यहाँ पर आराम होता था, और यहाँ पर नहा धोआ कर फिर अपनी अपनी रिवायती इलाज करने वाले। अच्छा, लाल चौक और लाल मंडी, बिल्कुल लाल चौक लाल मंडी। डेट ऑफ बर्थ लाल मंडी का 1871। अच्छा, 1871, यही डेट ऑफ बर्थ है रंबेरगंज, जिसको आप महाराजगंज कहते हैं जी, यही डेट ऑफ बर्थ है लाल मंडी और महाराजा बाजार का। अच्छा, ये इनका एक ही डेट ऑफ बर्थ है। आप देखिए लाल मंडी, ये बंदरगाह थी, आबी बंदरगाह। अच्छा, आबी बंदरगाह, यहाँ से किश्तियां निकलती, यहाँ पर वो पत्थरों के, जिसको कश्मीर में यारबल कहते हैं, संग सियाह का बना हुआ था, वहाँ वासराय वहां से उतरता। प्राइम मिनिस्टर कश्मीर का जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कोलवन, वो वहीं रहता, उसी बिल्डिंग में रहता था। सेंट्रल फिटिंग पुराने वक्त की उसमें लगी थी, इस बिल्डिंग में। वो भी जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जहाँ है वहाँ पर थी, वो थी उसमें, वो था गेस्ट हाउस था प्राइम मिनिस्टर का। वहां पर ना हॉर्न बजाने की, इसी लाल मंडी से अब आगे ट्रांसपोर्ट चलता था। बस होती थी एक बहुत बड़ी किश्ती, जो हमें 15 टिपर जो लोड उठा, वो एक बस उठाती थी, और 5 पोल्यूशन नहीं होता, ना पेट्रोल जलता था, ना कुछ, पानी पर चलता था। खनबल से खादियार, खनबल कहाँ है, अनंतनाग। खादियार आप बारामूला से आगे है, वहां तक चलता वाटर ट्रांसपोर्ट। अच्छा, काफी एक तवील, ये हमें वही सहारा था। शहर जो था दरियाई जहलिम के किनारों पर वाक़ा था, इसलिए क्योंकि वाटर बॉडीज पर काम चलता था। सब जो महलात थे वो सब इसी पर हैं, दरियाई जहलिम के किनारे पर, जो जहाँ पर देखो। ये अमीर खान ने अपने एक जिंदगी का एक बहुत हिस्सा तुझ पान रोजमत से आगा अशरफ सबस नाज़रीन खतर क्या दिलचस्प वाक़ा का आगा अशरफ सबस बेलो साद भी। यहाँ पर मुझे क्या, ये पढ़ लीजिए, यहाँ पर मुझे क्या एड्रेस, रसूल शाह साहब जैसे आगा साहब अपनी तरीफाना जबान में, जरीफाना जबान में बुकरात कहते हैं। कहाँ बुकरात? वो है जो पहला फिजिशियन था दुनिया का, तो मैं कहाँ हूँ, कहाँ मैं, तुम कहाँ बुकरात, ये उनका टाइटल है।
मैं उस काबिल नहीं हूँ जो उन्हें दे दिया। पता नहीं किस ख्याल में था, क्या उनका ख्याल था। अच्छा चलो ये भी ठीक है। या बकौल गुलाम रसूल साहब घर जलाना पड़ेगा, चलिए पढ़े आगे। पत्थर खाने पड़ेंगे, जख्म सहने पड़ेंगे और जख्मों का लहू हो सकता है कि आपके अपने शफीक अंग भी आपको ये अप्रोप्रिएट रिमार्क्स उसने दे दिए मुझे आखिरी टाइम पर। अच्छा, जब उनकी डेथ हो गई बहुत मुश्किल हो गया। ये उन पर मैंने मर्सिया लिखा, आपका कॉलम है। मैं मर्सिया लिखा है उस पर कि मैं नमक हराम न गिना जाऊं। जी, आगा अशरफ साहब की याद में आपने ये लिखा है, एक नौहा के तर्ज में उनकी याद में लिखा है आपने। कुछ ऐसा वाक़ा, क्योंकि आप करीबी के साथ आपने उनके साथ काम भी किया है, तो कोई ऐसा करीबी काम ऐसा है नाज़रीन के लिए आप एक दफा बताएं। एक लड़का आ गया, पता नहीं कहाँ, बिल्कुल निकम्मा, न कपड़े तान पर, न कुछ थे न कुछ। वो आगे तो ये ड्यूटी से आ रहा था तो मैं भी वहाँ बैठा था। अच्छा। हमेशा मुझे याद करते थे, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ। तो जब उनके सामने पूछा तो रोया उसने काफी। मैंने कहा मैं क्या कहूँगा, मुझे क्या यहाँ जिक्र है, मुझे क्यों तंग करे बराबर। तो वो निकला बेचारा, खा लिया। आगे से उसकी माँ आ गई। अच्छा। वो उसने बाहर रखी थी, माँ आ गई फटी हुई बेचारी। उसने कहा अगर आप इसकी मदद नहीं करोगे इसने कोल पान। इसने कहा जवाब दिया मैं क्या नैरसमस रखमस, मैं क्या कर। अच्छा, भाई घर पान बिहित इसने पान सुनतन। मुझे भी रोना आ गया। है पोर्मुत TDC पे पढ़ा है। अच्छा, TDC से पोर्मुत दोस्तों मार्क सर्टिफिकेट था कैसे सर्टिफिकेट क्यों अपोज ना बाल पुलिस। उसने निकाली मार्क सर्टिफिकेट भी दे दी, ये दे सुनने के काफी मार्क सर्टिफिकेट भी के सामने। जब लिखे इसे ऐसे हाथ ऐसे काटे इसके हायर मार्क्स इसके हैं। अच्छा। और आगे अशरफ उसको बोर्ड का था ये चेयरमैन। कहते मैं ये हाथ काटूंगा कि मैं तोड़ूंगा। क्या था सीडी हॉस्पिटल का स्प्रेंडर, मुझे याद नहीं। उसको फोन किया, उसको कहा अगर एक कार है तार दे। अच्छा। तार अगर एक कार है तार दे। वो आ गया, उसने कहा इसके, उसने लिखा स्लीपर एक्सरे एट वन शो मी वेट। वहां पर आ गया तो OTB पेशेंट है। क्या कहूंगा, चलो इसको अस्पताल भेज दिया। माँ को कहा नौकर लग गया, तनख्वाह चलो चालू है इसकी। चला गया वहां पर भी इलाज हो गया था। उससे पूछता रह गया। एक प्रोफेसर आ गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। अच्छा। वो ये लिखा भी है, मेरे अंदर किताब है उसमें मेंशन किया है। वो आ गया इनके यहाँ कुछ दोस्ती का था, उस पर मेंशन नाम किया। इनका फलानी डेट को उसको वहां आना है अलीगढ़ में, मैं इनको मेडिकल सीट अलॉट करूंगा। तो वो डॉक्टर बनाया। इसके बाद क्या, बहुत खूब, बहुत खूब। मिट्टी से उठाना, ऐसे कहीं वाक़ा है। दुर्गा दूसरी, अगर मेरी जबान से कोई एतबार करेगा क्या है, यहाँ पर दुर्गा की शादी हुई है। बीएड लड़की करती, बीएड एक लड़की थी कर रही थी, उसको घर पर से मार पड़ी थी। बच्चों ने देखा उसको, पूछते पूछते ये प्रिंसिपल आगा साहब थी। अच्छा। मैं वहां पर तेलबड़ में टीचर था तो मुझे बुलाने के लिए आ गया। इसके ने लक्ष्मण को तोरे वाल, वो हिंदी टीचर था वहां पर शालामार का। अच्छा। इसने इसका लगन कर दिया बीएड कॉलेज में। आगा साहब ने, आगा साहब, उसका भाई था आगा अशरफ, आगा नासिर अली थे DC से। उसने कहा कोई मदद नहीं मैं नहीं करूंगा आपकी, इस पर शोर उठेगा कुछ हो जाएगा। चलो उनको कुछ पैसे दिया, जाओ हनीमून माने पहलगाम। उसका बाप आ गया, समझा क्या छोटी जात का है, बड़ा लड़का मिल गया, तालीम याफ्ता है, कि आपको क्या तकलीफ होगी बेटी से, क्या तकलीफ। बिल्कुल, ये हैसियत थी। ये बहुत लॉस हुआ उनकी, क्या कहूँ कितने। अल्लाह उनको भी मग़फ़िरत करे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम, उम्दा काम किया है। और आपकी फर्स्ट इनिंग्स भी और सेकंड इनिंग्स भी आप आए हैं, खूब रह चुकी है। तो नाज़रीन, ऐसी जो हमारी पर्सनैलिटीज़ है इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फ़िलहाल आज के शुमारे में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।